Assalamu alaikum students. After reading the chapter, we come towards summary of Nelson Mandela, Glory and Hope. So Nelson Mandela delivered a speech to his countrymen and the world leaders on 10th May 1994 on the occasion of his inauguration ceremony as President of South Africa. So inauguration ceremony means इफ्तिताही तकरीब. जैसे मैंने बताया था आपको चैप्टर में हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका का इलेक्शन ही वॉज चूजन एज अ प्रेजिडेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो अब उसकी चूँकि इफ्तिताही तकरीब है जिसमें वो अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं, तो ये वो खिताब वाली स्पीच है. एज अ प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विच इज़ नेम्ड as Glory and Hope. In this speech, which is delivered by Nelson Mandela, he tries to give the Africans a sense of pride and security. South African के लिए एक sense of pride, उनको फ़ख्र दिलाने के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए ये स्पीच उन्होंने डिलीवर की. He tells them that by the dint of long struggle, by the dint means by the power of, एक लंबे अरसे तक जिद्दोजहद करने के बाद they have got out of this situation of racism. उन्होंने निजात हासिल कर ली रेसिज्म से, डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सिज्म मीन्स किसी भी जेंडर को जो है लो कंसिडर करना, टायरनी एंड लॉलेसनेस. टायरनी मीन्स जुल्म, लॉलेसनेस मीन्स कानून को फॉलो ना करना. हैव अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड अदर काइंड्स ऑफ डेप्रिवेशन. डेप्रिवेशन मीन्स तमाम अदर महरूमियों से भी उनको निजात मिल गई. ही स्ट्रेस्ड दैट दे मस्ट मेंटेन द फ्रीडम एंड मेक देयर कंट्री एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो दूसरे लोगों के लिए हमें इसको एक मिसाल बनाना चाहिए. Nelson Mandela paid thanks to world leaders for participating in their inauguration ceremony and shows his hope that they will help him in solving the problems in the way of peace, prosperity, sexism and democracy. तो वो वर्ल्ड लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इनकी हेल्प करेंगे इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. He says in his historic speech that the people of the world have taken them back into their bosom because they have been successful in the achievement of democratic rights after a long struggle. Have taken them into their bosom means दोबारा उन्होंने उनको अपने दिलों में जगह दी. यहाँ पे ये आप कह सकते हैं. Nelson Mandela appreciates his nation on their pivotal role in the achievements of their goal of freedom. He says that after achieving their political freedom from all kinds of exploitation, they must pledge themselves to liberate all their people. They must promise themselves कि वो दूसरे लोगों की आज़ादी के लिए काम करेंगे from continuing slavery, poverty, deprivation, suffering and other injustices. तो इन तमाम दीगर जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उनसे भी उनको निजात दिलाई जाएगी. They must create situation in which the citizens of the country will be able to walk peacefully. तो इसके अलावा उनको ऐसी सूरत हाल अब पैदा करनी होगी कि जिसमें तमाम जो ब्लैक पीपल हैं वो एक अमन से रह सकें और डिग्निटी के साथ, यानी पूरे वक़ार के साथ रह सकें और इज़्ज़त के साथ. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट एंड क्रीड, मतलब किसी रंग नस्ल की तमीज़ ना हो. एंड विदाउट एनी फियर इन देयर heard. Finally, he dedicates the day to those people who sacrificed their lives for the achievement of freedom. Dedicate mean करना, tribute पेश करना, उनको खराज तहसीन पेश करता है जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की. He says that they should work for bringing about national reconciliation for the birth of a new world and never allow their beautiful land to go back into the state of oppression. Oppression means मजलूमी, suffering and injustice. Black people को ये कहते हैं कि इन्होंने अब हार्ड वर्क करना है और अपने कंट्री को दोबारा इस स्टेट में, इस हालत में जहाँ पे वो महरूमी और सख्ती की लाइफ गुजार रहे थे और जहाँ पे कोई इंसाफ नहीं था, तो उससे वापस इसको बचाया जाए. So question number 1 is who are the people Nelson Mandela is addressing and what is the occasion? किस मौके पर और किन लोगों से नेल्सन मंडेला खिताब कर रहे हैं? So Nelson Mandela delivered this speech after having been elected president in South Africa first multiracial elections in 1994. Multiracial election means जिसमें मुख्तलिफ लोगों को मौका दिया गया इस इलेक्शन में. इससे पहले ब्लैक पीपल को जो है वो वोट करने का हक नहीं था. In this historical speech, Mandela is addressing to his fellow party members, international guests and his entire nation. तो यहाँ पे वो खिताब किस किस को करते हैं? फेलो पार्टी मेंबर्स को, इंटरनेशनल गेस्ट जो वहाँ पे ये तकरीब अटेंड करने आए थे. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट फिगरेटिव लैंग्वेज डज नेल्सन मंडेला use to communicate his profound feelings of patriotism and sense of belonging to his homeland. नेल्सन मंडेला की तकरीर में कौन सी मेटाफोरिकल लैंग्वेज यानी कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो डीप इमोशंस हैं उनकी और फीलिंग्स हैं उनकी तर्जुमानी कर सकें.
So Mandela's speech is uplifting, inspirational and commanding. Uplifting means मोरल बूस्ट करती है, मीन इनकरेजिंग है और इंस्पिरेशन दिलाती है विद द एड ऑफ ब्यूटीफुल सिमलीज, और वो खूबसूरत सिमलीज का इस्तेमाल करता है एंड मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है. ही हैज़ कन्वेड हिज प्रोफाउंड फीलिंग ऑफ पैट्रियाटिज्म एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू हिज होमलैंड. और इस तकरीर के ज़रिए वो अपनी डीप फीलिंग्स का इजहार करता है और अपने जज्बे हुब्बुल वतनी और वतन से मोहब्बत को जाहिर करता है. ही फील्स लव एंड अफेक्शन फॉर हिज कंट्री द वे फ्लावर्स लव ब्लूमिंग सीजन. सिमिलरली हिज हार्ट एक्ट्स व्हेन हिज हार्टी इज इन पेन और ट्रबल. तो जिस तरह से फूल खिलते हैं बहार के मौसम में और फूलों को बहार का मौसम अच्छा लगता है, इसी तरह नेल्सन मंडेला को अपना मुल्क बहुत अच्छा लगता है. सिमिलर हिज हर्ट्स एक्स मीन्स उनका दिल दर्द महसूस करता है अगर उस कंट्री को कोई मुसीबत हो. What was the situation like in South Africa before this very celebration of liberty and glory that Nelson Mandela is speaking of? नेल्सन मंडेला जो ये तकरीर रहा है, तो इस तकरीर से पहले या उनकी प्रेसिडेंटशिप से पहले साउथ अफ्रीका में कैसे हालात थे. सो पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज ऑफ वाइट, ब्लैक, कलर्ड इंडियन. इन 1958 ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप. ठीक है, 1958 में उनको सिटीजन ही नहीं माना गया साउथ अफ्रीका का. There were separate schools, buses, shops and hospital for black and colored people. Even laws were different. सारी नाइंसाफ़ी जो है वो ब्लैक पीपल के साथ होती थी. द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनइक्वालिटी लेड बाय नेल्सन मंडेला. तो उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया जिसको नेल्सन मंडेला ने लीड किया, वो लीडर थे. व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय साउथ अफ्रीका बीइंग वंस द स्कंक ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, नेल्सन मंडेला क्यों स्कंक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? नेल्सन मंडेला इज एक्सप्रेसिंग हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड होप थ्रू अ मेटाफोरिकल रेफरेंसेस. अकॉर्डिंग टू हिम दे विल नेवर लेट देयर कंट्री अगेन टू बी द विक्टिम ऑफ रेशियल difference and brutal injustice. It will never ever again experience the indignity of being despicable and disgusting due to racial hatred. So despicable and disgusting means काबिल नफ़रत, काबिल तहकीर. तो दोबारा जो है ब्लैक लोग इतनी कोशिश करेंगे कि वो अगेन इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ना करे, कोई ऐसे हालात उनके सामने ना पेश आएँ कि उनको बहुत ज़्यादा लो कंसिडर किया जाए और उनको हकारत की नज़र से देखा जाए. Question number 5 is, considering that South Africa was once the skunk of the world, why does Nelson Mandela give his speech the title Glory and Hope? Glory of what and hope of what? Question का मतलब है, वो खुद कहते हैं कि एक बार साउथ अफ्रीका जो है वो skunk of the world था. पूरी दुनिया ने उनके साथ सेग्रीगेशन की हुई थी, पूरी दुनिया जो है उनको निगलेक्टेड तस्वर कर रही थी. फिर क्यों वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि ग्लोरी और होप? तो किस चीज़ की ग्लोरी और कौन सी होप? Mandela served nearly 27 years in prison, but he never gave up the fight. मीन हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने. After his release, he went to become president of South Africa, keeping South Africa's past and his struggle in his mind. Mandela gave his speech the title Glory and Hope. In this speech, he has celebrated the glory of his hard and lifelong struggle and an everlasting hope for the peaceful, equal and just nation. सो उसके लाइफ स्ट्रगल की ग्लोरी और होप जो है साउथ अफ्रीका के पीसफुल और इंसाफ पसंद पुरअमन मुल्क होने की जो उम्मीद है, उन दोनों का जिक्र करते हैं वो. व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय अ रेनबो नेशन एट पीस विद इटसेल्फ एंड द वर्ल्ड? सो साउथ अफ्रीकन नेशन को वो रेनबो नेशन क्यों कहते हैं? नेल्सन मंडेला अप्रिशिएट्स एंड सेलिब्रेट्स द सक्सेस ऑफ द एफर्ट टू इम्प्लांट होप इन द हार्ट्स ऑफ हिज पीपल. मीन उम्मीद की एक किरण जगाना चाहते हैं अपने लोगों के दिलों में. अकॉर्डिंग टू हिम दे ऑल विल नाउ बिल्ड an equal and just society where all South Africans, both black and white, will be able to walk together without any fear. मीन साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो अब ऐसे एक माशरे की तश्कील करेंगे जहाँ काले गोरे की कोई तमीज़ नहीं होगी और बिला किसी खौफ के वो मूव कर सकेंगे. We all be like rainbow, consist of different colors, but displayed in an equal and same position. This rainbow nation will have peace with the world and itself. So साउथ अफ्रीका में मुख्तलिफ कल्चर के जो लोग रहेंगे वो वहाँ पे इंसाफ के साथ रहेंगे. उनमें इतनी प्यार मोहब्बत होगी कि वो जो है एक रेनबो नेशन की तरह बन के उभरेंगे. Question number 7 is, what does the Mandela mean by humanity has taken us back into its bosom? Who was outlaws not so long years ago? तो इस जुमले से नेल्सन मंडेला की मुराद क्या है? इंसानियत ने हमें वापस अपने दिलों में जगह दी.
उन लोगों को जिनसे थोड़े ही अरसे पहले तमाम दुनिया ने तर्क ताल्लुक़ किया था. So Mandela is praising the efforts and sacrifice of his people of South Africa. Their lifelong struggle and fight for their rights and racial inequality has brought them to humanity. That is why Mandela says that humanity has taken us back into its protection, and we who were rebellious or criminal not so long ago have today been given the privilege to lead the whole nation in front of the world. सो साउथ अफ्रीका के लोगों की तारीफ़ करते हैं कि जिन्होंने नस्ली तासुब पे काबू पाया और इसी वजह से इंसानियत ने वापस उनको अपने दिलों में रखा. उन लोगों को जिनको थोड़े ही अरसे पहले बड़ा बागी और मुजरिम तस्वर किया जाता था, और आज के दिन दुनिया की तमाम अक़वाम साउथ अफ्रीका उनको लीड कर रहा है. Question number 8 is Dr. King and Mandela use the word freedom in their speeches. Write an essay in which you compare and contrast King's and Mandela's use of the word in an attempt to arrive at each man's definition of freedom. तो इससे पहले आई हैव अ ड्रीम में आपने मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी सुना. उन्होंने भी फ्रीडम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इसके अलावा मंडेला भी अपने ग्लोरी एंड होप वाले जो स्पीच है उसमें भी फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं. दोनों शख्सियात ने लफ्ज़ आज़ादी को किस सेंस में इस्तेमाल किया, तो आपने इस पॉइंट को क्लियर करना है कि हाउ देयर डेफिनेशन और हाउ देयर celebration for freedom is different. So the answer is that Mandela's speech is inaugural speech, while King's speech was delivered in a demonstration. तो मंडेला की स्पीच जो है ये इनाग्रल है, इफ्तिताही तकरीब है जब वो प्रेसिडेंट बने, जबकि किंग की जो स्पीच है वो एक कॉल थी, एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, और उन्होंने ब्लैक लोगों को इकट्ठा किया ताकि उनको जिद्दोजहद पे उभर सकें आज़ादी के लिए, जबकि मंडेला आज़ादी अचीव कर चुका है. किंग एंड मंडेला वर इंस्पिरेशनल सिंबल्स ऑफ आवर ह्यूज फ्रीडम स्ट्रगल हैपनिंग इन बोथ कंट्रीज़. तो जैसे मंडेला जो है एक सिंबल रहा है फ्रीडम का, इसी तरह डॉक्टर किंग भी थे. Mandela wrote in his autobiography Long Walk to Freedom, I made reference to King's immortal freedom. King freedom is a call for movement of racial equality, while Mandela's freedom is depicting celebration. जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है जिससे नेल्सन मंडेला जो है वो खिताब कर रहे हैं, जबकि किंग की जो फ्रीडम थी वो एक कॉल फॉर मूवमेंट थी, एक आवाज़ उन्होंने बुलंद की जिसके साथ उन्होंने और लोगों को भी चाहा कि वो उनके साथी बने ताकि वो आज़ादी का हुसूल मुमकिन बना सकें. अकॉर्डिंग टू किंग, फ्रीडम इज़ होप एंड एन अर्ज, whereas for Mandela it's an asset which they have gained after many sacrifices. तो डॉक्टर किंग के मुताबिक आज़ादी जो है एक उम्मीद है, अंदर से उठने वाली इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, जबकि मंडेला के लिए आज़ादी जो है कीमती असासा है जिसको उन्होंने कई कुर्बानियों के बाद हासिल किया. ओके, आफ्टर द क्वेश्चन आंसर वी विल गो टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. In the exercise of glory of hope we see the uses of relative pronoun. तो relative pronoun के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा कि relative pronouns वो होते हैं जो दो clauses को मिलाते हैं आपस में, जैसे who, whose, that, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं. एज जनरल रूल हु जो है ये पर्सनस के लिए यूज़ होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. जैसे अगर हम यहाँ पे आएँ पेज नंबर 62 पे देखें एग्जांपल, ही हु हेजिटेट इज़ लॉस्ट. तो यहाँ पे ही सिंगुलर है फिर भी हम हु यूज़ करें. इसी एग्जांपल को अगर मैं कहूँ दे हु हेजिटेट आर लॉस्ट, ठीक है, तो दे प्लूरल है फिर भी हमने हु यूज़ किया. इसी तरह समटाइम्स इट इज़ यूज्ड टू एनिमल्स ऑल्सो. एनिमल्स के लिए भी हम हु, वैसे तो विच इसको लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन हु भी कभी कभी आ जाता है. विच जो है हमारे पास अदर रिलेटिव प्रोनाउन है, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं. इसमें भी सिंगुलर प्लस प्लूरल बोथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. द बुक्स विच और द मोमेंट विच, आप देखें मोमेंट एक है सिंगुलर तब भी विच, और बुक्स प्लूरल हैं तब भी विच. और थर्ड एग्जांपल देखें, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट, तो हॉर्स के लिए भी विच ही यूज़ हुआ है जो कि एनिमल है. इसके अलावा हु और विच जो है अपने एंटीसीडेंट के बारे में मालूमात देते हैं जिनको रिस्ट्रिक्टिव कहा जाता है या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस कहा जाता है या डिफाइनिंग भी कहा जाता है. देखें नीचे आए, द मैन हु हैड चीटेड मी. अब किस आदमी ने, हु किसको एक्सप्लेन कर रहा है, मैन को. इसी तरह नीचे देखें, द बुक विच बुक, द बुक विच, आगे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यू सी ऑन द टेबल. सो विच यू सी ऑन द टेबल इज़ रेफरिंग टू द सेम बुक. इस तरह से ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस या डिफाइनिंग क्लॉजेस भी बताता है.
और इसी के ऑपोजिट कंटिन्यूएटेड या नॉन डिफाइनिंग क्लासेस के लिए भी होते हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लासेस वो होते हैं जिसमें क्लियर हो जाता है मतलब, मगर फिर भी उस क्लास को रेफर करता है। देखें, द टीचर सेंट फॉर द बॉय। अब आपको पता है कि कौन सा टीचर वो जो बॉय के लिए भेजा गया। ये पूरी एक क्लॉज है जो कंटिन्यू है इसका मीनिंग, और नॉन डिफाइनिंग है, उसको भी ये रेफर कर रहा है। देखें, हु केम एट वंस। यहाँ पे हु जो है अपने एंटेसिडेंट के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि अगली जो क्लास है एंड हु केम एट वंस, तो यानी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के साथ भी यूज़ हुआ है। आई गेव हिम अ रूपी, सो आई गेव हिम व्हाट अ रूपी, इसको डिफाइन नहीं करा। विच ऑल आई हैड विद मी, सो एंटेसिडेंट क्लास के बारे में जो इससे पहले गुजर चुकी है मालूमात नहीं दे रहा, बल्कि इससे बाद आने वाली जो कंटिन्यू क्लास है या नॉन डिफाइनिंग क्लास है उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। कभी कभी नॉन डिफाइनिंग क्लास जो है इसको कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, तो इसकी मीनिंग बहुत चेंज आती है। देखें, अगर मैं कहूँ माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, इसका मतलब है आई हैव मैनी ब्रदर्स एंड आउट ऑफ देम वन इज़ डॉक्टर। जबकि सेकंड में देखें, एंटीसीडेंट माई ब्रदर के बाद अगर कॉमा लगाया जाए माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, तो ये एक एडिशनल यहाँ पे हु जो है वो मालूमात दे रहा है कि मेरा कौन सा भाई, मेरा एक ही भाई है हु इज़ अ डॉक्टर, जो कि प्रोफेशन वाइज डॉक्टर है। ठीक है, तो कॉमा के इस्तेमाल से जो नॉन डिफाइनिंग क्लासेस हैं उनके मीनिंग चेंज होते जाते हैं इफ़ यू आर पुटिंग कॉमा विद रिलेटिव प्रोनाउंस। अब दैट जो है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका भी यूज़ जो है प्रेजेंट पर्सन के लिए होता है और थिंग्स दोनों के लिए होता है। देखें, दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू, एंड द हाउस जो कि थिंग है दैट ही लिव्स इन। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका इस्तेमाल सिर्फ जो है रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लॉजेस में ही होता है, क्योंकि ये हमेशा अपने एंटेसिडेंट के बारे में मालूमात देते हैं। जैसे हाँ, अगर मैं कहूँ आई नो द हाउस दैट, तो द हाउस जो है मेरा एंटेसिडेंट है जिसके बारे में दैट मुझे मालूमात दे रहा है। आगे लिखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है इसमें रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है, मीन ये रिस्ट्रिक्ट होता है अपने ही एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट के बारे में मालूमात देता है, इसीलिए हम उसको कभी कभार हु और विच के साथ यूज़ नहीं कर सकते, अनसूटेबल लगता है। ठीक है, माई फादर दैट इज़ अ स्कूल मास्टर, सो मीन यू आर हैविंग सो मेनी फादर्स एंड आउट ऑफ विच दैट वन फादर, सो यू कैंट यूज़ हियर, द यूज़ ऑफ दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, इसीलिए आप यहाँ पे हु का ही यूज़ करेंगे। माई फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर, और नॉन डिफाइनिंग क्लास चूज़ करेंगे, यानी हु से पहले आप कॉमा लगाएंगे। माई फादर एडिशनल मालूमात दे रहे हैं, हु इज़ अ स्कूल मास्टर। अच्छा, जो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, द मोस्ट फेमस बुक दैट ever I read, he was the most eloquent speaker that I ever heard। so यहाँ पे देखें, the most eloquent सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है, तो अगर यहाँ पे आपने कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है वो दैट होगा। इसी तरह ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग के आगे भी अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो दैट होगा। ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है हु, व्हाट, उसके बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगेगा। हु दैट सा हर, हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। व्हाट जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सिर्फ थिंग्स के साथ ही हम यूज़ करते हैं, और कभी कभी ये शुरू में भी इस्तेमाल होता है जिसका मतलब उस वक्त वो ये मतलब दे रहा होता है दैट विच का। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, दैट विच इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। कभी कभी एज का वर्ड भी जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है ऐसे जुमलों में जिसमें सच का इस्तेमाल हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट येस्टरडे, तो एज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज़ सच अ मैन एज आई ऑनर। इसके अलावा अगर पिछले जुमले में एज यूज़ हुआ हो सच के बजाय, तो तब भी हम एज ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, collected as many specimen as I could find। इसी तरह समटाइम्स कंजंक्शन बट जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम देता है। जैसे देखें इस एग्जाम्पल में, देयर इज़ नो मैन बट विशेस टू लिव, मीन ऑल पीपल, ऑल मैन वॉन्ट टू लिव। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट। ठीक है, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर मैं कहूँ द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड,
अब यहाँ पे वॉज आया है। अगर मैं कहूँ द बॉयज़ हु आर लेज़ी वर पनिश, तो आर और वर का यूज़ हुआ है, मीन वर्ब प्लूरल यूज़ हुए हैं। अगर मेरा एंटीसीडेंट जो है वो प्लूरल है, अगर मेरा एंटीसीडेंट पहले जुमले में सिंगुलर था तो मैंने वर्ब भी जो है वो वॉज यूज़ किया, मीन सिंगुलर यूज़ किया। सो दिस इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस टू इट्स एंटीसीडेंट। होप फ्रेंड्स आपने सारे ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।